میں کئی دن سے محسوس کر رہا تھا کہ کوئی نادیدہ وجود ہے جو ہر وقت میرے آس پاس رہتا ہے، خاص کر تنہائی میں چلتے ہوئے لگتا کہ کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے اور اکثر میرے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دیتی۔ مڑ کر دیکھتا تو کوئی نہ ہوتا اور گھر سے باہر یہ احساس مزید قوی ہو جاتا اور رات کے کسی پہر اچانک میری آنکھ کھل جاتی، کمرے سے باہر قدموں کی چاپ سنائی دیتی اور جیسے کوئی چل پھر رہا ہو۔ دروازہ کھول کر دیکھتا تو کوئی موجود نہ ہوتا، اور اس کے علاوہ ایک اور تبدیلی بھی میں نے محسوس کی۔ ہر وقت میرے ارد گرد گلاب کی مہک موجود رہتی۔ آفس میں، گھر میں اور راہ چلتے ہوئے مسلسل گلاب کی مسحور کن خوشبو میرے آس پاس رہا کرتی۔ رادہ ایک پر اسرار ناول، ایک ایسے خاندان کی داستان جو شیطانی مخلوق کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ میں جلے پاؤں کی بلی کی طرح کبھی اندر کبھی باہر پھرتا رہا اور بار بار سائمہ کا معصوم چہرہ میرے سامنے آ جاتا۔ اس کی معصوم نظریں مجھ سے سوال کرتی، فاروق، مجھے کس کے سہارے اکیلا چھوڑ آئے ہو؟ اور میں سر جھٹک کر ان خیالات سے پیچھا چھڑاتا، لیکن دوسرے لمحے وہ میرے سامنے آ جاتی۔ فاروق، خدا کے لیے مجھے ان ظالموں کے جنگل سے چھڑاؤ، میں بہت اکیلی ہوں۔ اور میں گھبرا کر باہر آ گیا۔ فاروق، تم تو کہتے تھے کہ مجھے تم سے عشق ہے، اور پھر مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اور بار بار وہ مجھ سے سوال کرتی اور میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں گھبرا کر اندر آ گیا اور ڈرائنگ روم میں بچھے صوفے پر بیٹھ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ فاروق، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز میری مدد کرو اور مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ سائمہ کا چہرہ بند آنکھوں کے سامنے ابھر آیا۔ میں آ رہا ہوں سائمہ، میں آ رہا ہوں۔ اور میں چیخ اٹھا اور نازش بھاگ کر اندر آ گئی۔ کیا ہوا فاروق بھائی؟ اور میرے پاس کھڑی پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا فاروق بھائی، اور آپ تو بڑے حوصلے والے ہیں، اور سائمہ بھی بہت نیک ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظت کرے گا، انہوں نے مجھے تسلی دی، اور میں نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے اندیشہ تھا کہ میرا حوصلہ جواب دے جائے گا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں گا۔ نازش باہر چلی گئی اور عمران نے انہیں ساری بات بتا دی تھی۔ فاروق بھائی، اور میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور وہ ہاتھ میں چائے کی پیالی پکڑے کھڑی تھی، اور صبح سے اب تک ایک کھیل بھی اڑ کر میرے منہ میں نہ گئی تھی۔ اور بچوں کو تو میں نے بازار سے کچھ لیزر لے کر کھلا دی تھی، لیکن خود پانی تک نہ پیا تھا۔ سائمہ نہ جانے کس حال میں ہوگی، اور اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہ ہوگا، اور اس خیال نے مجھے کھانے سے باز رکھا۔ رات ہو گئی اور مومنہ تھوڑی دیر کے بعد رونے اور ماں کو یاد کرنے لگی، اور شام تک اسے بخار ہو گیا تھا، اور عمران اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو مجھے اپنا ہوش تک نہ تھا۔ احد بار بار میرے پاس آتا اور معصوم آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتا اور باہر چلا جاتا۔ ڈاکٹر نے عمران کے کہنے پر مومنہ کو نیند کی دوا بھی کھلا دی، اور وہ سو رہی تھی، اور عمران کافی دیر میرے پاس بیٹھا تسلی دیتا رہا۔ لیکن میرا حال تو یہ تھا کہ جیسے دنیا اندھیر ہو گئی ہو، اور کچھ نہ اچھا لگ رہا تھا، اور بار بار اپنی بزدلی پر مجھے غصہ آتا کہ میں کیوں اس وجہ سے وہاں چھوڑ کر چلا آیا۔ رات ہو گئی اور میں نے عشاء کی نماز پڑھ کر ایک بار پھر اپنے معبود حقیقی کے سامنے سر سجدے میں رکھ دیا، اور رو رو کر مصلی گیلا ہو گیا۔ رونے سے کچھ سکون ملا، اور عمران کے اصرار پر چند لقمے زہر مار کیے اور خاموشی سے کمرے میں آ گیا، اور بچے سو چکے تھے۔ پریم، رادہ کی آواز آئی اور میں بری طرح اچھل پڑا۔ پریم، ترنت اپنے گھر میں پہنچو۔ اور آواز دوبارہ آئی اور میں نے چاروں طرف دیکھا، رادہ کہیں نہ تھی۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا واقعی رادہ نے آواز دی تھی، یا یہ سب کچھ میرا وہم ہے۔ سمے برباد نہ کرو، ترنت اپنے گھر جاؤ۔ اور آواز اس بار واضح طور پر سنائی دی، رادہ تم کہاں ہو؟ اور میں نے ایک بار پھر چاروں طرف نظریں دوڑائی۔ میں ابھی ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، اور تم اپنے گھر چلے جاؤ، اور اپنے متر کی پتنی سے کہو کہ وہ تمہاری سنتان کی رکشا کرے، اور گھر میں کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں نے عمران کو ساری صورتحال بتائی اور تاکید کی کہ نازش بچوں کے پاس سو جائیں، اور وہ ساتھ جانے پر بضد تھا، لیکن میرے سمجھانے بجھانے پر مان گیا۔ میں گاڑی آندھی اور طوفان کی طرح بھگاتا ہوا گھر پہنچا۔ گیٹ بند تھا، اور میں نے بیل بجائی، اور کافی دیر انتظار کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا تو میں نے چابی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ لان اور برآمدے کی لائٹس جل رہی تھیں، اور لان کے بیچوں بیچ
ओफलों की राख से एक बहुत बड़ा दायरा बना हुआ था और दायरे के दरमियान एक पीतल का थाल और जिसमें बारीक बारीक राई जैसे स्याह दाने भरे हुए थे और थोड़े थोड़े फासले पर जमीन में लकड़ी के छोटे छोटे कले किले गड़े हुए थे और ये बिल्कुल वैसे थे जैसे लोग मवेशियों को बांधने के लिए जमीन में गाड़ देते हैं, लेकिन साइज में उससे काफ़ी छोटे थे। और बरामदे के फर्श पर कोयले से अजीबोगरीब नक्शो निगार बने हुए थे और मैं हैरत से सब कुछ देखता हुआ अंदर दाखिल हो गया। सारा घर खाली था और मेरा ख्याल था कि मोहम्मद शरीफ मौजूद होगा, लेकिन वो भी ना था और ये सब कुछ शायद उसी ने किया था और राधा के बगौल कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। लेकिन यहाँ तो बंदा ना बंदे की ज़ात और घर बाएं बाएं कर रहा था। मैं सारे घर का चक्कर लगाकर ड्राइंग रूम में आ गया और अभी मुझे बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि बेल बजी और मैं चौंक गया। कौन हो सकता है इस वक्त, मैंने सोचा और उठकर बाहर आ गया और गेट खोला तो सामने मोहम्मद शरीफ खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम जनाब, उसने मुस्कुराकर मुझे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। और मोहम्मद शरीफ, गेट तो खुला हुआ था, फिर तुमने बेल क्यों बजाई? और मैंने हैरत से पूछा। मैंने आपकी गाड़ी देख ली थी और इस पेशे नज़र बेल दी कि हो सकता है कि आपके साथ खवातीन भी हों। और उसने आहिस्ता से कहा, आओ अंदर आ जाओ। और मैंने एक तरफ हट कर उसे रास्ता दिया। वो अंदर आ गया और मैंने गेट बंद कर दिया। और मोहम्मद शरीफ, ये सब क्या है? मैंने लान की तरफ इशारा किया। सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है जनाब। कल रात हजरत साहब तशरीफ़ लाए थे, लेकिन आप इस वक्त यहाँ कैसे? उसने हैरत से पूछा। और मैं शशोपन में पड़ गया कि उसे राधा के बारे में बताया जाए या नहीं। और ऐसे ही बस दिल बहुत अफसुदा था, इसलिए यहाँ चला आया और मैंने बात बनाई। अच्छा हुआ कि आप आ गए और मैं तो खुद आपको बुलाने का इरादा कर रहा था। और उसने मुस्कुराकर कहा, क्यों खैरियत? और किसी को आपसे मिलाना है। और वह मुस्कुराया। किसे? और मैंने चौंक कर पूछा। आइए अंदर चलकर बैठते हैं। और वह अंदर की तरफ बढ़ते हुए बोला और हम दोनों ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। मैं मुंतज़िर था कि मोहम्मद शरीफ किससे मुझे मिलवाना चाहता है और साथ में हैरान भी था कि घर में हम दोनों के सिवा कोई मौजूद ना था। अब्दुल वदूद, अंदर तशरीफ़ ले आइए। और मोहम्मद शरीफ ने बाहर की तरफ मुंह करके आवाज़ दी। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और एक नहायत खुशरो बारिश नौजवान अंदर दाखिल हुआ। दराज कद, सुर्ख व सफ़ेद रंगत, बड़ी बड़ी सहरकार आंखें और शाने तक बड़े हुए स्याह काले बाल। उसकी सफ़ेद रंगत पर काली दाढ़ी बहुत भली लग रही थी और उसने पुराने ज़माने के शहजादों जैसा कीमती लिबास पहन रखा था। और अंदर दाखिल होकर उसने बड़े वकार अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। और मोहम्मद शरीफ ने जवाब दिया। मैं हैरत के समुंदर में गोताजान था और पहली बात तो ये कि गेट बंद था और शरीफ के आने से पहले मैं सारे घर में चक्कर लगाकर देख चुका था, मगर मेरे अलावा कोई ना था। और फिर ये जवान कहाँ से आ गया? और मैं बेख्तर उसके एहतराम में खड़ा हो गया। वो बावकार चाल चलता हुआ मेरे पास आ गया और इतना खूबसूरत नौजवान मैंने कम ही देखा था। हालांकि प्रताप भी बतवजी था, लेकिन इस नौजवान जिसे मोहम्मद शरीफ ने अब्दुल वदूद के नाम से पुकारा था, वजाहत और शानदार शख्सियत में नंबर ले गया था। और उसके चेहरे पर ना जाने ऐसी क्या बात थी कि नज़र हटाना मुश्किल थी। मैं यकटक उसकी तरफ देखता रहा और उसकी आंखों में भी दिलचस्पी थी, माशाल्लाह। और उसने मेरी तरफ देखकर बड़े नस्तलीक अरबी अंदाज से कहा और उसकी आवाज़ भी उसकी तरह खूबसूरत थी। मेरे करीब आकर उसने अपना हाथ बढ़ाया और मैंने जल्दी से उससे मुसाफा किया। मोहम्मद शरीफ मुस्कुराते हुए हम दोनों को देख रहा था और उसके नाम हाथ पर रुई के गाले का गुमान होता था। ये शेख अब्दुल वदूद हैं और हज़रत साहब के मुरीद ख़ास। मोहम्मद शरीफ ने मेरी उलझन दूर की और मैं समझ गया कि इस नौजवान का तल्लुक़ कौम जिन्नात से है और मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा था। अल्लाह ताला ने आपको दिल खोल कर वजाहत अता फरमाई है और सुबहान तेरी कुदरत। और मैं उसकी गंभीर आवाज़ के सहर में खो गया। आप भी कुछ कम नहीं और अल्लाह पाक ने आपकी भी बेमिसाल आपको पैदा फरमाया है। और बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, तशरीफ़ रखिए। मोहम्मद शरीफ ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए उसे बैठने के लिए कहा। खान साहब, कल रात से हज़रत बातफसील बातचीत हुई है और उन्होंने कमाल शफ़क़त फरमाते हुए भाई अब्दुल वदूद को भेजा है और यह हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। मोहम्मद शरीफ ने कहा, भाई फ़ारूक, आप फ़िक्र ना करें और इंसान पर जो भी मुसीबत आती है अल्लाह पाक ने उसका तदराक भी उसी दुनिया में रखा है और अल्लाह ताला ने अपने प्यारों को आज़माता है और अरशाद बारी ताला है।
हम जिसको आजमाते हैं उसे भी भूख और खौफ से आजमाते हैं, और जिसको सज़ा देते हैं उसे भी भूख और खौफ से। और अब्दुल वदूद ने बड़े मुदब्बराना अंदाज में समझाया, और जिन्नात से हम कलाम होने का ये मेरा पहला मौका ना था कि मैं झिझकता। भाई अब्दुल वदूद, हम कहाँ इस काबिल के अल्लाह के प्यारों में खुद को शुमार करने की जुर्रत कर सकें, और मैं तो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ और बता नहीं सकता। लेकिन मेरी बीवी तो मासूम और पाकबाज है, और इतनी बावफा और बाहया कि मैं उसकी पाकीज़गी की कसम खाने के लिए तैयार हूँ। फिर उस पर यह मुसीबत, और मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। और मैंने हाथ मलते हुए कहा, भाई अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, और ये मसाइब और मुश्किलात इंसान के गुनाहों की बख्शिश और दर्जात की बुलंदी का बायस होते हैं, और किसी के गुनाह जड़ जाते हैं और किसी को दर्जात में बुलंदी अता होती है। और आप फिक्र ना करें, और शैतान जितना चाहे कभी हो जाए, अल्लाह पाक की कुदरत के आगे बेबस है। हो सकता है कि ये मुश्किल वक़्त किसी नेक काम की सआदत का बायस बन जाए। अब्दुल वदूद ने कहा, और मैंने सर झुका लिया। भाई मोहम्मद शरीफ और हज़रत साहब का हुक्म था कि बिला ताख़ीर काम किया जाए, और इसलिए मुझे एक जाए नमाज अता फरमा दें तो मशकूर होऊंगा, और मैं कुछ देर मुराकबा करना चाहता हूँ। और मोहम्मद शरीफ से मुखातब हुआ, और मैंने जल्दी से उठकर जाए नमाज दे दी। माजरत ख्वाह हूँ, आप लोगों को कुछ देर मुझे तन्हाई में काम करने की इजाज़त देना होगी। और उसने हम दोनों की तरफ देख कर कहा, हाँ ज़रूर, और मैं और खान भाई आपका इंतज़ार करते हैं, और जब आप फारग हो जाएं तो बता दीजिएगा। और हम दोनों बाहर आकर बरामदे में बिछी कुर्सियों पर बैठ गए। मोहम्मद शरीफ, ये सब क्या है? और ये नौजवान? खान साहब, भाई अब्दुल वदूद हज़रत साहब के बहुत होनहार शागिर्द और मुरीद हैं, और इस उम्र में अल्लाह की रहमत और रियाज़त व इबादत के बाद उन्होंने वो मकाम हासिल कर लिया है जो किसी खुश नसीब को मिलता है। ज़बरदस्त रूहानी क़ुव्वतों के मालिक हैं, और ये साहब, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हमारी मुश्किलात का खात्मा हो जाएगा। और उसने बड़े खलीक लहजे में कहा, क्या साइमा की शक्ल दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगी? और जो फिक्र मुझे कल से खाई जा रही थी, मैंने इसका जिक्र मोहम्मद शरीफ से किया। जनाब, माजरत चाहता हूँ कि मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ सका, और मैंने कल तुम्हें बताया था ना कि जब मैं घर पहुँचा तो वो बदबख्त साइमा के जिस्म पर काबिज था, और साइमा की शक्ल बहुत खौफनाक हो चुकी थी, और मैंने उसे याद दिलाया। हाँ जी, बताया था, लेकिन खान भाई आप इसके बारे में बिल्कुल फिक्रमंद ना हों, और ये सब बसरी धोखा होता है, और जिन्नात की ये मजाल नहीं कि वो इंसान की शक्ल शफाहत में तब्दीली पैदा करने की कुदरत रखते हों। वो तो महज हम इंसानों को खौफजदा करने की खातिर हमारी नज़र को धोखा देते हैं, और जो कुछ हमें नज़र आ रहा होता है ऐसा कतई नहीं होता। जिन्नात के कुछ मामलात में इंसान पर फौकियत हासिल है, और वो उससे काम लेकर खौफजदा करते हैं। मेरे सर पर से जैसे पहाड़ हट गया, और शुक्र है कि अल्लाह ताला का ये सब नजरी धोखा होता है, और अल्लाह पाक ने इनको इस जुल्म की ताकत नहीं दी, वरना तो इंसान बहुत नुकसान में रहता। और मैंने एक तवील सांस ली, तो क्या वो सब धोखा था? हाँ जनाब, और वो महज नज़रबंदी होती है। वो जो कुछ चाहते हैं हमें वही नज़र आता है, जैसा कि बाद शोबदाबाद हमारी नज़रबंदी करके हमें जो कुछ दिखाते हैं जिस पर अक्ल एतबार नहीं करती। मसलन वो कागज़ को नोट की शक्ल में ले आते हैं, और कुछ टहनियों की एक झड़ी बनाकर उसमें आम पैदा करके हमें दिखा देते हैं। उसने तफसील से बताया। हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे, और इस मामले में मोहम्मद शरीफ की मालूमात काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि मेरा वास्ता एक अरसे से जिन्नात से था, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ ना जानता था। और सच कहते हैं कि अल्लाह वाले वसी इल्म के मालिक होते हैं, और जो उनकी नेकी और पाकबाजी के बाद अल्लाह ताला अता फरमाता है। मैंने मोहम्मद शरीफ को बुलंद के बारे में बताया, और जिसे सुनकर उसने इत्मीनान का इजहार किया, और बच्चों की हिफाजत की खातिर मरंग ने सब कुछ किया था। भाई मोहम्मद शरीफ, अगर जहमत ना हो तो अंदर तशरीफ़ ले आइए, लेकिन बसदे माजरत आप अकेले ही आइएगा। और अंदर से अब्दुल वदूद की आवाज़ आई, और मोहम्मद शरीफ ने माजरत ख्वाहाना अंदाज से मेरी तरफ देखा। कोई बात नहीं मोहम्मद शरीफ, तुम चले जाओ। और मैंने मुस्कुराकर इजाज़त दे दी, और वह शुक्रिया कहकर अंदर चला गया, और मैं टहलता हुआ गेट के पास आ गया। प्रेम, और अचानक मेरे कान में राधा की सरगोशी उभरी, और मैंने चौंक कर देखा। प्रेम, मैं कालीदान के स्थान पर जा रही हूँ, और तुम अपने मित्रों को लेकर तुरंत वहां पहुंचो। और सारे पुजारी किसी जाप में मगन है, और विष्णु दास कहीं जा चुका है, राधा ने जल्दी से कहा।
लेकिन राधा और मुझे तो उस जगह के बारे में मालूम ही नहीं, मैं कैसे आऊँगा, मैंने कहा। और तुम्हारे मित्र जानते हैं, आवाज़ आई। मैं जा रही हूँ, तुरंत वहाँ पहुँचो। और उसके साथ ही आवाज़ आना बंद हो गई और इतने में मोहम्मद शरीफ बाहर आया। खान भाई जल्दी से चलिए और हमें एक जगह जाना है। और वो गेट की तरफ जाते हुए बोला, लेकिन वो भाई जो अंदर वो जा चुके हैं और हमारे लिए कहा है कि हम भी वहाँ पहुँच जाएं। और मोहम्मद शरीफ मेरी बात काट कर बोला। मैंने गेट को ताला लगाया और हम गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। किस तरफ जाना है? मोहम्मद शरीफ आंखें बंद किए बैठा था। और दाएं तरफ मोड़ लीजिए और अब आपने उन्हें पूछना, मैं खुद ही बताता चलूँगा। और वो बगैर आंखें खोले बोला। और मैं उसके कहने के मुताबिक चलता रहा और वह गाहे बगाहे मुझे बता देता और गाड़ी किस तरफ मोड़ना है। थोड़ी देर के बाद शहर पीछे रह गया और हम बड़ी सड़क पर आ गए। और तकरीबन 1 घंटे की ड्राइवर के बाद हम एक गांव पहुंच गए। गांव क्या था, चंद कच्चे घर बने हुए थे और रात की तारीकी में गाड़ी में हेडलाइट में जो कुछ नजर आता मैं उसकी रोशनी में देखता जा रहा था। और उसके बाद अचानक खंडरात शुरू हो गए। और शायद कभी यहाँ शहर आबाद हो रहा होगा, क्योंकि खंडरात काफ़ी वसी रकबे पर फैले हुए थे। और हम खंडरात के दरमियान कच्चे रास्तों पर चलते रहे और मोहम्मद शरीफ मुझे बाकायदा रास्ता समझा रहा था और उसकी आंखें मुसलसल बंद थीं। बस यहाँ गाड़ी रोक दीजिए। और एक बड़ी इमारत के खंडर के पास पहुंचकर उसने आंखें खोल दी। मैंने ब्रेक पर पाँव रखा और गाड़ी एक बुलंदो बाला इमारत के खंडर के पास रुक गई। और कभी ये इमारत वाकई शानदार होगी, लेकिन रात के अंधेरे में उसके महीब खंडर से बेहद डरावने लग रहे थे। और इमारत का बैरूनी गेट साल खुर्दा लकड़ी का था, जो मुमताज़ ज़माना के हाथों बुरी तरह टूट फूट चुका था। और मैंने गाड़ी की लाइट जलती रहने दी और मोहम्मद शरीफ ने अपने थैले से वो छोटी इलायची के दाने निकाल कर एक मुझे दिया और दूसरा अपने मुंह में रख लिया। खान भाई, इसे मुंह में रख लीजिएगा और चबाइएगा नहीं, उसने मुझे हदायत की और नीचे उतरने के लिए कहा। और थैले से एक ताकतवर और बहुत बड़ी टार्च निकाल कर जला ली। इसे मजबूती से थाम लीजिए और किसी भी सूरत ये आपके हाथ से छूटने ना पाए। और उसने टार्च मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने उसे पकड़ लिया और हम गाड़ी से निकल आए। और मैंने उसे लॉक कर दिया और मोहम्मद शरीफ ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अंदर की तरफ कदम बढ़ाते हुए मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। खान भाई, क्या आपको सूरह नास ज़ुबानी याद है? उसने पूछा। हाँ, मुझे आखिरी सिपारे की काफ़ी सारी सूरतें याद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका विद शुरू कर देते हैं और बोलिएगा नहीं। उसने दूसरी हदायत की और मैंने उसकी हदायत के मुताबिक अमल किया। और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मैं दिल ही दिल में अपने माबूद बरहक से साइमा की खैरियत और अपनी कामयाबी की दुआ मांग रहा था। जैसे ही हम टूटा हुआ फाटक पार करके अंदर पहुंचे, तेज आंधी चलना शुरू हो गई और मट्टी और गर्दो गुबार से कुछ नजर आना मुश्किल हो गया। हमारी आंखों में मट्टी घुस गई और मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली। हवा के तेज झक्कड़ हमें साथ उड़ाने की कोशिश में थे और आंधी और इस कदर तेज थी कि कदम उखड़ते महसूस हो रहे थे। और मोहम्मद शरीफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हमारे कपड़े हवा में उड़ने लगे और जैसे ही पढ़ने के लिए मुंह खोलता उसमें मट्टी भर जाती। और आखिर मैंने होंठ सख्ती से भींचकर दिल ही दिल में पढ़ना शुरू कर दिया। हवा के शोर से कान पड़ी आवाज़ न सुनाई दे रही थी और फिर यकदम जैसे आंधी शुरू हुई थी खत्म हो गई। गर्दो गुबार बैठ गया और फिजा साफ हो गई। और मैंने थूक कर मुंह में आई मिट्टी को निकाला और कमीज के दामन से मुंह को अच्छी तरह साफ किया। मोहम्मद शरीफ ने मेरा हाथ मजबूती से थामा हुआ था और अचानक सारा खंडर तेज सुर्ख रोशनी में नहा गया। यूं लग रहा था जैसे करीब कहीं आग लगी हुई हो। और हम एक वसी लान में खड़े थे और सामने की तरफ मलबे के बड़े बड़े ढेर थे। आधी आधी दीवारें नजर आ रही थी और कभी ये कमरे रहे होंगे और अब खंडरात में तब्दील हो चुके थे। मैं अभी गिरदो पेश के मंजर का देख ही रहा था कि मोहम्मद शरीफ ने मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ दौड़ लगा दी और मैं अपने ख्याल में था और झटका खाकर उसके पीछे घिसटता चला गया। और अचानक ही मेरी नज़र मट्टी की उन 2 तोदों पर पड़ी जो सामने किसी टेले की तरह नजर आ रहे थे और तोदे तेजी से हमारी तरफ लड़क रहे थे। और अगर 1 लम्हे की ताखीर हो जाती तो हम दोनों उन तोदों के नीचे कुचले जाते। खौफनाक आवाज़ें निकालते तोदे हमसे चंद कदम के फासले पर से गुजर गए। मोहम्मद शरीफ मुसलसल कुछ पढ़ रहा था और मैंने भी सूरह नास का विर्द जारी रखा। भाग जाओ और उसी वक्त यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारी जान के खैर नहीं। और अचानक एक गर्जनाक आवाज़ गूंजी
اور اس کی گرد سے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ آواز اتنی بلند اور خوفناک تھی کہ دل دہل رہا تھا، اور محمد شریف کسی بات کی پرواہ کیے بغیر میرا ہاتھ پکڑے مجھے اپنے پیچھے گھسیٹ رہا تھا، اور اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو میرے لیے آگے بڑھنا ممکن نہ تھا۔ وسیع دالان پار کر کے ہم ایک ٹوٹے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے، اور اس کمرے کی چھت سلامت تھی، اندر ملجگا اندھیرا تھا، اور اچانک بہت سی چمگادڑیں ہم پر حملہ آور ہوئیں۔ اندھیرے میں ان کی آنکھیں ننھے ننھے جگنوں کی طرح چمک رہی تھیں، اور ان کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ اتنی زوردار تھی کہ میں لرز گیا۔ محمد شریف نے کچھ پڑھ کر ان کی طرف پھونک دیا، اور وہ ہماروں سروں پر منڈلانے لگی، اور بلا شبہ ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی، اور کمرے کا فرش ان کی بیٹھوں سے بھرا ہوا تھا، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ فرش ہی بیٹھوں کا بنا ہوا تھا تو بے جا نہ ہوگا۔ اور کمرے میں ایسی بو پھیلی ہوئی تھی جو پرانی عمارتوں میں ہوتی ہے، اور ہر طرف دھول جمی ہوئی تھی۔ محمد شریف نے کچھ پڑھ کر پھونکا، اور کمرے میں دودھیا روشنی پھیل گئی۔ سامنے والی دیوار میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا، اور جس کا ایک پٹ بند تھا، جبکہ دوسرا ٹوٹ کر جھول رہا تھا، اور محمد شریف میرا ہاتھ تھامے اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ کمرے کے دروازے پر مکڑی نے اتنے جالے بنا رکھے تھے کہ گمان ہوتا جیسے دروازے پر مہمن ملبل کا پردہ بنا پڑا ہوا ہو۔ شریف ایک ہاتھ سے جالا ہٹاتا اور میرا ہاتھ تھامے اندر داخل ہو گیا، اور دوسری جانب ایک طویل راہداری تھی، اور یہاں بھی جا بجا چھت سے جالے لٹک رہے تھے، اور جو چلے سے ہمارے چہرے پر لگتے، اور ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دوسرے ہاتھ سے جالے ہٹاتے اندر بڑھتے گئے، اور شیطان کی آنت کی طرح طویل راہداری ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ یہاں سکوت مرگ طاری تھا، اور اس گرجدار آواز کے بعد ہر طرف خاموشی چھا گئی، بلکہ اب تو ایسی خاموشی طاری تھی کہ جیسے دنیا ختم ہو گئی ہو۔ آگے جا کر اندھیرا گہرا ہو گیا، اور محمد شریف نے دوبارہ وہی عمل دہرایا، اور اس سے ایک بار پھر دودھیا روشنی پھیل گئی، اور وہ میرا ہاتھ تھامے آگے بڑھتا رہا، اور زمین پر گرد کی تہیں اور پرندوں کی بیٹھیں جمی ہوئی تھیں، اور ہمارے چلنے سے مٹی اڑ کر منہ میں آ رہی تھی، اور راہداری گرد سے بھر گئی، اور اچانک مجھے کھانسی محسوس ہوئی، اور کھانسنے کی وجہ سے میرا دم ٹوٹ گیا۔ اچانک میرے پیر جلنا شروع ہو گئے، اور جیسے میں تپتے ہوئے توے پر چل رہا تھا، اور اذیت کے باعث میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں تڑپ کر رہ گیا، اور پاؤں زمین پر رکھنا محال تھا، اور ایک پاؤں اٹھاتا تو دوسرا جلنے لگتا، اور پہلا پاؤں رکھ کر دوسرا اٹھاتا تو وہ جلنے لگتا، اور تکلیف سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ محمد شریف! اور میں نے اذیت سے اسے پکارا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور جلدی سے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک بوتل نکالی، اور اس کا ڈھکن کھول کر کوئی سیار سی چائے کے چند قطرے زمین پر گرا دیے، اور اچانک زمین ٹھنڈی ہو گئی۔ لیکن اتنی دیر میں میرے تلوے بری طرح جل چکے تھے، اور میں لنگڑاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ بڑی مشکل سے اپنا ورد جاری رکھے ہوئے تھا، اور تکلیف سے میرے منہ سے سسکاریاں نکل رہی تھیں۔ باہر آ کر راہداری کا اختتام ایک دروازے پر ہوا، اور یہ پہلا دروازہ تھا جو صحیح سلامت اور بند تھا۔ محمد شریف نے اس کے سامنے پہنچ کر میرا ہاتھ چھوڑ دیا، اور تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک تسبیح نکالی اور میرے گلے میں ڈال دی۔ پھر ایک اور تسبیح نکال کر دروازے پر بنے ایک کیل پر ٹانگ دی، اور یہ پرانے زمانے کا دروازہ تھا، اور جس پر نقش و نگار کے ساتھ کچھ موٹے موٹے ابھرے ہوئے کیل بھی تھے۔ اور اس کے بعد اس نے وہی بوتل نکالی، اور اشارے سے مجھے بوتل منہ سے لگا کر پینے کو کہا۔ میں نے ڈھکن کھول کر ایک گھونٹ بھرا، اور بوتل اسے پکڑا دی۔ اس نے دائیں ہاتھ کا چلو بنا کر اس میں چند قطرے ڈالے، اور انہیں دروازے پر چھڑک دیا۔ چرر کی آواز آئی، اور جیسے پانی جلتے توے پر پڑا ہو۔ ہا 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 ہا، اور دل دہلا دینے والے خوفناک کہکے لگنے شروع ہو گئے۔ آواز اتنی بلند تھی کہ گھبرا کر میں نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ دیے، اور کافی دیر کہکے جاری رہے۔ لگتا تھا کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، اور میں نے پورے زور سے اپنے دونوں شہادت کی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں۔ محمد شریف ہر چیز سے بے نیاز کچھ پڑھنے میں مصروف تھا، اور میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اسے بھی کہکوں کی باز گشت سی سنائی دے رہی تھی یا نہیں، لیکن وہ اطمینان سے اپنے عمل میں مصروف تھا، اور اچانک کہکے لگنا بند ہو گئے، اور ایک بار پھر سکوت چھا گیا، اور اتنی گہری خاموشی تھی کہ اگر کوئی سوئی بھی زمین پر گرتی تو اس کی آواز واضح سنائی دیتی۔ اور اچانک دل خراش چیخ نے سکوت کو درہم برہم کر دیا، اور وہ چیخ سائمہ کی تھی، اور کرب و اذیت سے بھری ہوئی چیخ سن کر میرا کلیجہ حلق میں آ گیا۔
फारूक मुझे बचाओ और इन درندوں سے مجھے بچاؤ۔ اور سائمہ کی اذیت بھری چیخیں سن کر میں لرز گیا۔ قریب تھا کہ دیوانہ وار آواز کی سمت بھاگ اٹھتا اور محمد شریف نے اشارے سے مجھے منع کیا اور چیخیں مسلسل آ رہی تھی اور میں نے بے چینی سے محمد شریف کی طرف دیکھا۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ فاروق مجھے ان ظالموں سے بچاؤ، فاروق مجھے ان درندوں سے بچاؤ، اور یہ میری عزت لوٹنا چاہتے ہیں، اور اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میں خود کشی کا لوں گی۔ اور سائمہ مسلسل چیخ کر مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میں بار بار محمد شریف کی طرف دیکھتا لیکن اس نے مسلسل انگلی ہونٹوں پر رکھی ہوئی تھی اور وہ کچھ پڑھ رہا تھا، اور سائمہ کی چیخیں میرے صبر کا امتحان لے رہی تھیں۔ میرا دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ کر اس کی مدد کے لیے بھاگ پڑوں، اور دل پر پتھر رکھے کھڑا رہا، اور سائمہ مسلسل میری منتیں کر رہی تھیں۔ فاروق اگر تم میری مدد کے لیے نہ آئے تو میں سچ کہہ رہی ہوں اور میں اپنی جان دے دوں گی۔ ان بدبختوں نے میرے کپڑے اتار دیے ہیں، اور اگر تم نے مجھے ان سے نہ بچایا تو مرنے کے بعد بھی میں تمہیں معاف نہ کروں گی۔ اور سائمہ چیخ رہی تھی، فریاد کر رہی تھی۔ آخر کار میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور محمد شریف میری کیفیت بھانپ گیا تھا۔ اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور میں نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، اور اس نے آنکھیں نکال کر مجھے تنبیہ کی کہ میں اس حرکت سے باز رہوں، لیکن سائمہ کی پکار نے مجھے دیوانہ کر دیا اور میں مسلسل زور لگاتا رہا۔ محمد شریف نے میری طرف دیکھا اور دروازے پر پھونک ماری، اور اس کے ساتھ ہی چیخیں بند ہو گئیں۔ خان بھائی، یہ سب دھوکہ ہے، اور یہ بات سائمہ بہن کی نہیں، اور ان کا ان بختوں کی چال ہے، اور وہ میرا وظیفہ خراب کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ دروازہ نہ کھل سکے، اور اگر آپ جانے لگتے تو میں ضرور وظیفہ توڑ کر آپ کو روکتا، اور یہی وہ بدبخت چاہتے تھے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر میں نے پڑھائی مکمل کر لی تو دروازہ کھل جائے گا، اور یہ دیکھیں۔ اس نے دروازے کو دھکیلا اور وہ زبردست چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ محمد شریف نے میرا ہاتھ تھاما اور بسم اللہ پڑھ کر اندر قدم رکھ دیا، اور میں نے بھی اس کی تقلید کی، اور دروازے کے آگے نہایت بیش قیمت حریرہ پردہ پڑا ہوا تھا، اور جیسے ہی محمد شریف نے پردہ ہٹایا میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ کمرہ تھا یا کسی بادشاہ کی پرتعیش خوابگاہ۔ قصے کہانیوں میں اس قسم کی خوابگاہوں کا تذکرہ پڑا تھا۔ وسیع و عریض خوابگاہ کے بیچوں بیچ ایک بیش قیمت لکڑی کی جہازی سائز کی مسہری موجود تھی، اور جس کے گرد باریک پردے لٹکے ہوئے تھے۔ نہایت مسحور کن خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، اور کمرہ پوری طرح روشن تھا، لیکن روشنی کا مخرج نگاہوں سے پوشیدہ تھا، اور میں چاروں طرف آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ حیرت سے میری زبان گنگ تھی، اور میں نے قدم بڑھایا تو جیسے ریشے میں دنس گیا، اور فرش پر نہایت ملائم اور دبیز قالین بچھا ہوا تھا، اور محمد شریف نے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے روک دیا۔ میں نے مسہری پر نظر ڈالی، اور ریشمی باریک پردوں کے پیچھے کسی کی موجودگی ظاہر ہو رہی تھی، اور محمد شریف نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک چھڑی نکالی اور اسے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر چاروں طرف گھمایا، اور وہ مسلسل کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک پردے ایک طرف سرکنا شروع ہو گئے، اور اندر کا منظر سامنے آتے ہی میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ مسہری پر شہزادوں جیسا لباس پہنے، سر پر ہیروں کا تاج رکھے، اور پرتاب نیم دراز تھا، اور وہی پرتاب جسے رادھا نے بسنتی کو لانے کا حکم دیا تھا، اور وہ اپنی جان پر کھیل کر اسے لے آیا تھا، اور اس کی ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ ساتھ سونے والی شخصیت پر نظر پڑتے ہی میرا خون میں ابال آ گیا، اور رگوں میں خون کی بجائے لاوا دوڑنے لگا، اور اس بدبخت کے پہلو میں سائمہ دراز تھی، اور اس کے جسم پر بیش قیمت لباس اتنا مہمن تھا کہ اس کا کندن بدن جھلک رہا تھا۔ اور محمد شریف نے یکدم آنکھیں جھکا لیں، اور قریب تھا کہ میں انجام سے بے خبر آگے بڑھ کر اس ملعون کو جان سے مار دیتا، اور اس کی آواز آئی، آہا، اور مہاراج موہن آئے ہیں، اور پداریے مہاراج پداریے، اور ہمارے باغ، اور آج تو چیونٹی کے گھر نارائن آئے ہیں۔ اور وہ چہک کر بولا، اور میرے جسم میں چنگاریاں دوڑنے لگیں۔ اچھا تو یہ تو تھا حرام دادے، اور میں سوچتا تھا کہ آواز جانی پہچانی لگتی ہے، اور حرام کے جنے تیرے اگر کوئی دشمنی تھی بھی تو مجھ سے، اور پھر تو نے میری معصوم بچی کو کیوں اپنے ظلم کا نشانہ بنایا؟ اور میرے منہ سے جھاگ اڑنے لگا، کل یگ ہے، کل یگ، اور مہاراج میں نے تو کوئی انیائے نہیں کیا، اور تم نے میری پریمکا سے پریم کیا، اور میں نے تمہاری پتنی سے، اور اس میں انائی کی کیا بات ہے؟ اور یہ تو سیدھا سادہ سودا ہے۔ تمہیں جس شے کی چاہ تھی تم نے لے لی، اور مجھے جس کی چاہ تھی میں نے لے لی، اور اب تم ہی کہو مہاراج، اور اس میں کوئی انیائے والی بات ہے؟
اور اس نے آخری فکرہ محمد شریف کی طرف دیکھ کر کہا، جو آنکھیں جھکائے ہوئے خاموش کھڑا تھا اور پہلی نظر کے بعد اس نے سائمہ کی طرف دوبارہ نگاہ نہ ڈالی تھی۔ تم جو کوئی بھی ہو اور تم نے غیر شرعی فعل کیا ہے، اور اگر سلامتی چاہتے ہو تو سائمہ بن کر اس کے خاوند کے حوالے کر دو اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے گناہ کی معافی مانگو، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جنوں ان سب کو اور اب تک جو گناہ تم سے سرزد ہوئے ہیں ان کی بخشش کے لیے ان کے سامنے جھک جاؤ، اسلام قبول کر لو اور یہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اور وہی سب کا معبود برحق ہے اور کائنات کا مالک بھی۔ شرک اس راستے کو جس پر تم شیطان کے حکم کی اطاعت میں چل رہے ہو سیدھا تمہیں جہنم میں لے جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن و انس سے ان کے گناہوں پر باز پرس کرے گا، اور جس نے اطاعت قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود مان لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا اور قیامت پر ایمان لے آیا اور وہ نجات پا گیا۔ ورنہ تو انسان و جن سے روز محشر ان کے اعمال کا حساب ہونا ہی ہے، اور محمد شریف نے نہایت تحمل سے اسے اسلام کی دعوت دی۔ بند کر اپنا یہ اپدیش، اور تو نہیں جانتا کہ اس سمے تو کسی شکتی کے سامنے کھڑا ہے، اور یدی ایک پل میں تو یہاں سے باہر نہ گیا تو بسم ہو جائے گا۔ اور پرتاب حلق کے بل دھاڑا۔ ایک لمحے کے لیے محمد شریف کے چہرے پر جلال چھا گیا اور پھر وہ معمول پر آ گیا۔ اس نے ایک بار پھر اس ملعون کو اسلام کی دعوت دی، لیکن جواب میں وہ بکواس کرتا رہا اور اس نے اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور میں نے دیکھا کہ غصے سے محمد شریف کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو نادان ہے اور میں نے بہت کوشش کی کہ تو راہ راست پر آ جائے، لیکن تیرے دل پر قفل لگا ہوا ہے اور تو ہدایت پانے والوں میں سے نہیں۔ اور محمد شریف کی قہر بار آواز آئی، بڑھ بڑھ کر باتیں نہ کر، اور میں جانتا ہوں کہ تم عام منشوں سے ہٹ کر ہے، اور میں تجھے شمع کر کے جانے کا اوسر دیتا ہوں، پرنتو اس ملیچ کو ساتھ لے جانے کا نہ کہنا۔ اور میں نے مہاراج کالی داس کو وچن دیا ہے کہ اس کا بلیدان اوش کالی ماتا کے چرنوں میں ہوگا۔ اور پرتاب نے حقارت سے کہا، تو ایسے نہیں مانے گا۔ محمد شریف نے کہا، اور بھائی عبد الودود، اور میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، لیکن اس کی قسمت میں ایمان کی دولت نہیں لکھی، اور آپ جیسا حکم کرے۔ اور محمد شریف نے پرتاب کو جھڑ کر ایک طرف منہ کر کے کہا اور اچانک عبد الودود ظاہر ہو گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، اور پرتاب نے چونک کر عبد الودود کو دیکھا اور جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ چوکنا دکھائی دے رہا تھا، حالانکہ اس سے پہلے بڑی بے پرواہی سے نیم دراز تھا۔ بھائی محمد شریف نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، اور میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ شیطان کے پیروکاری چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آئیں، تاکہ آخرت میں آپ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور یہ دنیا محض چند روز کھیل تماشا ہے، دھوکہ ہے، اور اصل زندگی تو آخرت کے بعد شروع ہوگی، اور جہاں ہم سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر غور فرمائیں، اور اگر آپ کو کچھ مہلت چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس خاتون کو آزاد کر دیجیے اور ہمارے ساتھ ایک نشست اختیار کیجیے۔ امید ہے کہ اللہ کے حکم سے ہماری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ عبد الودود نے نہایت تحمل سے اس خبیث کو سمجھایا، اور پرتاب کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ چھا گئی۔ تم مجھے شکتی پورک جان پڑتے ہو، اور پرنتو تمہارا یہ بھاشن میری بدھی میں نہیں سماتا، اور منش جاتی سے ہمیں کچھ پراپت ہونے والا نہیں۔ ان کی سنگت چھوڑ کر میرے متر بن جاؤ، اور پھر دیکھو یہ سنسار تمہارے واسطے سرگ بن جائے گا، اور ایک سے ایک سندر کنیا ہے کالی داس کے شر میں، اور دیکھو گے کہ تو اپسراؤں کو بھول جاؤ گے۔ اور میں تمہیں وچن دیتا ہوں کہ کچھ سمے کے بعد یہ سندر ناری بھی تمہیں دان کر دوں گا۔ اور پرتاب نے اوبوشوں کے سے انداز میں صاحبہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے ہونٹوں پر خباثت بڑی مسکراہٹ رقصاں تھی، اور اس کی بات سن کر عبد الوجود کا چہرہ تیش سے کندھاری انار جیسا ہو گیا۔ اس نے قہرناک نظروں سے پرتاب کو دیکھا، اور جس کے ہونٹوں پر تاؤ دلانے والی مسکراہٹ تھی۔ محمد شریف، آپ گواہ ہیں کہ میں نے بھی اپنا فرض ادا کر دیا۔ اور اس نے محمد شریف کو مخاطب کیا، اور سن مورخ، تو مجھے ان سے الگ جان پڑتا ہے، اور اس کارن میں نے تجھے یہ بات کہی، اور پرنتو اس سے من میں یہ وچار نہ لانا کہ پرتاب تیری شکتی سے ڈر گیا ہے۔ اور وہ دوبارہ نیم دراز ہوتے ہوئے بولا، اس خبیث کو سائمہ کے ساتھ دیکھ کر میرے خون میں ابال آ گیا، اور میں مسحری کی پائنتی کی طرف میرے ساتھ اور محمد شریف، جبکہ مسحری کی دوسری جانب عبد الودود کھڑا تھا، اور ہم جس دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے وہ میرے بائیں جانب تھا۔
प्रेम, मैं आ गई हूँ, तुम चिंता मत करना। और अचानक दरवाजे से राधा अंदर दाखिल हुई और सब ने चौंक कर देखा और राधा की नज़र अब्दुल वदूद पर पड़ी और उसने चौंक कर उसे देखा और जल्दी से साड़ी का आंचल अपने सर पर डाल लिया, जैसा कि हमारी ख़वातीन किसी बुजुर्ग को देखकर करती हैं। और आज उसने लिबास भी उस किस्म का पहन रखा था और जिसने उसके सारे जिस्म को ढक दिया। और जब इससे पहले उसकी साड़ी, मुहिमन और ब्लाउज इतना मुख्तसर हुआ करता जो उसकी जिस्म को ढकने से कासर होता। मलमल की साड़ी में वो बहुत मुकद्दस दिखाई दे रही थी और चेहरा सिंगार से आरी और घनी सुल्फें चुटियों की सूरत में बंदी नजर आ रही थी और फूलों का जेवर भी गायब था जो उसकी शख्सियत का लाजमी जुज़ हुआ करता। और हत्ता कि उसके माथे पर वो तिलक भी ना था जो हमेशा उसकी सही पेशानी पर चिपका होता। वो बड़े गौर से अब्दुल वदूद को देख रही थी और मैंने देखा कि अब्दुल वदूद की आंखों में अजीब सी चमक थी। वो भी दिलचस्पी से राधा की जनब देख रहा था, लेकिन उसकी शफाफ आंखों में किसी किस्म की आलूदगी नहीं, फ़कत दिलचस्पी थी। आहा, और राधा देवी आई हैं। और पधारिए देवी जी, पधारिए। आज कैसे दास की याद आ गई और हमारे भाग के हमारी कुटिया में पधारें। और हम तो बड़े भाग्यशाली हैं देवी जी, आपने क्यों कष्ट उठाया और दास को आज्ञा दी होती और आपके चरणों में आ जाता। प्रताप चहका और कुछ देर अब्दुल वदूद को देख कर राधा ने अपनी नजरें प्रताप पर मजबूर कर दी और अब दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और यक बिक राधा का चेहरा तप गया। मूर्ख, तूने बड़ी भूल की जो राधा को कष्ट दिया। और क्या तू भूल गया था कि राधा किस शक्ति का नाम है? और उसकी गजबनाक आवाज़ कमरे में गूंजी और अब्दुल वदूद आराम से चलता हुआ एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी हर अदा से वकार झलकता था और बड़ी दिलचस्पी से दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। आज तेरी सुंदरता का कोई दाव प्रताप पर न चलेगा और हम तुझसे निराश हुए और अपना मन इस सुंदर नार को अर्पण कर दिया है। और देख तू ये सुंदर नार तुम में से कम नहीं। और प्रताप ने महू ख्वाब सहमा की तरफ इशारा किया और मेरी कन पटियां तप गईं और करीब था कि मैं उसे कुत्ते पर झपट पड़ता। और राधा की आवाज़ आई, प्रताप, और मैं अब भी तुझे क्षमा कर सकती हूँ और केवल तुझे इतना करना होगा कि इस सुंदर नारी को उसके पति के हवाले कर दे और दिया की बख्शा मांग। और मुझे विश्वास है कि मोहन तेरे अपराध को भूल कर तुझे क्षमा कर देगा। और यदि से समय तेरे हाथ से निकल गया तो तू जीवन बख्शा मांगेगा तो भी ना मिलेगी। और मैं तुझे एक और शर्त देती हूँ और मेरी बात मान ले, और वो भी उसी कारण कि तूने मेरी बड़ी सेवा की है। और राधा का लहजा इतना सर था कि प्रताप के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया और कुछ देर बाद वो संभल कर बोला, समय तो कब का बीत गया राधा, और याद है कि मैंने तेरे चरणों में सर रखकर तुझसे प्रेम की बख्शा मांगी थी, परंतु तूने इस पलीद मुसले के कारण मेरी विनती को स्वीकार न किया। और याद है ना? और प्रताप गुस्से से फल खाकर रह गया और उसके अंदाज में चौकन्नापन था और वो कभी राधा को देखता और कभी अब्दुल वदूद को। ठीक है, अब अपने महागुरु उस दुष्ट कालिदास को बुला के वो तुझे मेरे शराब से बचाए और आज आवाज़ दे और शक्ति को। और राधा तुझे संसार से परलोक भेजने के कारण आई है और मैंने तेरी तपस्या के कारण तुझे एक और सर दिया था, परंतु तू मूर्ख है। और राधा गजबनाक हो गई और उसके साथ उसने छत की तरफ देखकर किसी अजनबी जुबान में कुछ कहा और मेरा ख्याल था कि अभी छत से आग का गोला गिरेगा और प्रताप को जलाकर खाकसर कर देगा। फिक्र मुझे सहमा की थी कि कहीं वो भी आग की जिद में ना आ जाए। और इससे पहले कि मैं कुछ कहता, कमरे के कोने से बसंती की मकरू हंसी सुनाई दी, खी 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 देवी जी, और हम भी किसी कारण यहाँ बैठक लगाए बैठे हैं। और क्या तेरी शक्ति ने तुझे हमारे बारे में जानकारी नहीं दी? और उसकी खरखराती आवाज़ आई और साथ ही उसका गंदा वजूद ज़ाहिर हो गया। और राधा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में शोले भड़क उठे। बसंती अपने गंदे वजूद को घसीटती मसहरी के करीब आ गई और जिससे बदबू के भभके उठ रहे थे। और तू राधा की शक्ति के आड़े आएगी? और राधा ने जहर खान से कहा और उसके होंठों पर हकारत भरी मुस्कुराहट छा गई थी। उसने एक बार फिर मुंह ही मुंह में कुछ पड़ा और छत की तरफ देखकर किसी को पुकारा। और इससे पहले कि गोला छत से बसंती पर गिरता, बसंती चिल्लाई, महाराज, ये कलंकिनी आ गई है और अपने वचन के अनुसार मेरी सहायता करो। और अचानक ही कमरे में कोने से चिंगार सुनाई दी। मैं और मोहम्मद शरीफ बुरी तरह उछल पड़े और देखा तो एक देवोन्माद शख्स जिसका सर छत से लग रहा था और जिस्म किसी पहाड़ की तरह था, एक तरफ से नमूदार हुआ और चिंगारता हुआ राधा की तरफ बढ़ा। उसके जिस्म पर रेत की तरह बाल थे और यूं लग रहा था जैसे बालों से भरा हुआ गोश्त का पहाड़
लड़क रहा हो और उसने अपना पांव उठाकर दम से जमीन पर रखा, जिससे बड़ी भयानक आवाज खारिज हुई और उसके जिस्म पर फकत एक लंगोटी थी। कमरे की छत लगभग 50 फुट बुलंद होगी और वह पहाड़ उसमें सर झुकाए चल रहा था। राधा ने एक निगाह गलत उस पर डाली और उसके होंठों पर तंज या मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने गोश्त के उस पहाड़ को देखा और अचानक उसकी आंखों से सुर्ख रोशनी की धार निकलकर उस देव पर पड़ी और एक लम्हे में उसे जलाकर धुएं में तब्दील कर दिया। धुआं चकराता हुआ छत के पास जाकर गायब हो गया और मैं जो उस देव को देखकर घबरा गया था और राधा ने बड़ी आसानी से उसे खत्म कर दिया। और अब्दुल वदूद जो बड़ी दिलचस्पी से यह सब कुछ देख रहा था, उसके चेहरे पर राधा के लिए तहसीन के तासरात उभर आए। बसंती ने अपने मददगार का ये हशर देखा तो फौरन गायब हो गई। चमारू और राधा गदबनाक होकर गरजी, जी देवी जी, और फौरन चमारू की आवाज़ आई, बसंती को लाओ। और राधा ने उसे हुक्म दिया और थोड़ी देर बाद एक धमाके की आवाज़ आई और किसी ने बसंती को ज़मीन पर फेंक दिया। वो दर्द से बिलबिला उठी और अभी वो खड़ी न हो पाई थी कि राधा ने छत की तरफ देखा और आग का गोला नमूदार होकर बसंती के सर पर गिरा। उसके मुंह से ऐसी दिलखराश चीख बरामद हुई और जिससे दिल दहल जाए, और पल के पल आग के गोले ने उसे जलाकर राख का ढेर बना दिया। पापन और राधा की शक्ति को नष्ट करने चली थी और राधा ने उसके उस नीचे थूक दिया। अब क्या विचार है तेरे? और गैज़ो गदम में भरी राधा ने प्रताप से कहा, और जिसके चेहरे से परेशानी झलक रही थी। और बसंती का आश्चर्य देखकर वो खौफजदा नजर आने लगा। कालिदास का शराब तुझे भस्म कर देगा। और उसने डरे डरे लहजे में कहा, और अचानक कमरे में घुप अंधेरा छा गया, लेकिन सेकंड के हजारे हिस्से में दोबारा रोशनी हो गई। और क्या बालकों जैसे चमत्कार दिखाता है, कोई ऐसा काम दिखा कि राधा को तुझे अपना सेवक कहने पर लाज ना आए। और राधा ने उसका तमस्कर उड़ाया। राधा, हमारा धर्म एक है और हमारे बीच युद्ध अच्छी नहीं, और तू इन मुसलों के कारण अपने ही धर्म के एक पुजारी को नष्ट करने का विचार मन में ला रही है। और क्या तुझे लाज नहीं आती? और तूने एक मुसले के संग अपने शरीर का संबंध जोड़ा, और मैंने कितना कहा और तुझे ये शोभा नहीं देता, और तू दूसरे धर्म के मनुष्य संग ऐसा संबंध रखे, परंतु तूने मेरी एक ना मानी। और यदि तू मनुष्य जाति संग ऐसा संबंध रख सकती है तो मैं क्यों नहीं? और प्रताप ने बड़ी डटाई से कहा, और मेरा सर बेख्तियार शर्म से झुक गया। मोहम्मद शरीफ क्या सोचता होगा कि मैं कैसा आदमी हूँ? और मैंने देखा कि राधा भी शर्मसार दिखाई दे रही थी और उसने बड़े ठहरे हुए लहजे में कहा, हाँ, मुझसे भूल हुई और मैंने तो पुत्र प्रेम को प्लीत किया, और परंतु अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। और उस महापुरुष ने उसे मेरी तरफ इशारा किया, उपदेश देकर मेरी आंखें खोल दी। उसने कहा था कि हम दोनों के बीच जो संबंध है वो उसकी धर्म की शिक्षा, मज़हब की तालीमात के अनुसार ठीक ना है। और उस दिन से मैंने मन में ठान लिया और मैंने दोबारा उससे ऐसा संबंध नहीं रखूंगी। हाँ, मैं उससे प्रेम करती रहूंगी, और परंतु प्रेम आत्मा संग होगा, शरीर संग नहीं। और जब उसने मुझे उपदेश दिया है और मुझे बड़ी लाज आई और मैं वाकई उसके प्रेम में पागल हो गई थी। और यदि प्रेम तो दो आत्माओं का बंधन है, शरीर का नहीं। और राधा ने यह कहकर हम सबको हैरान कर दिया और उसकी नजरें ज़मीन में गड़ी हुई थी और चेहरे से शर्मिंदगी का इजहार हो रहा था। राधा, और मैं तुझे अभी क्षमा कर सकता हूँ, परंतु तुझे वचन देना होगा कि तू इस मुसले के संग कोई संबंध ना रखेगी। और प्रताप ने अपनी सी कोशिश की और उसका चेहरा उसके कौल का साथ ना दे रहा था। पापी, तू मुझे शिक्षा देगा? और राधा उस पर कहर भरी निगाह डालकर गरजी, और फिर उसके होंठ तेजी से हिलने लगे। और अब्दुल वदूद इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा झूल रहा था। उसके पुरकशिश चेहरे पर सुकून था। और राधा ने कुछ पड़ा और बेड की तरफ मुंह करके फूंक दिया। और अचानक प्रताप हवा में मलक हो गया और उसके मुंह से डरी डरी आवाज़ें निकल रही थी, राधा, दो देवी जी, और मुझे क्षमा कर दो। और छत के पास जाकर उसका जिस्म रुक गया और मैं जानता था कि अब क्या होगा। उसी तरह राधा ने साधु अमर कुमार के सांड चीले रामदास को छत तक पहुंचाकर जमीन पर पटक दिया था। और राधा की नजरें प्रताप के जिस्म का अहाता किए हुई थीं। उस कमीने का अंजाम करीब था और कोई लम्हा जाता था कि वह धमाके से फर्श से टकराकर हमेशा के लिए जहन्नम वासल हो जाता। और अचानक अब्दुल वदूद बर्क के कूंदे की तरह राधा की तरफ बढ़ा और उसने दोनों हाथों से धक्का दिया। और राधा की पूरी तवज्जो प्रताप पर थी और उसे धक्के से उड़ती हुई दीवार से जा टकराई। मेरी और मोहम्मद शरीफ की आंखें फट गईं कि अब्दुल वदूद ने यह क्या किया। लेकिन दूसरे ही लम्हे हकीकत हम सब पर वादे हो गई। और अगर अब्दुल वदूद एक लम्हे की ताखीर करता तो राधा जल कर राख हो जाती।
ऐन उसी जगह जहां राधा एक लम्हे पहले मौजूद थी, आग का एक शोला बुलंद हुआ और छत पर जाकर गायब हो गया। अब्दुल वदूद ने बड़ी सूरत से राधा को धक्का देकर उसकी जान बचाई थी और राधा दीवार से टकराकर फौरन उठ खड़ी हुई और उसने एक नज़र छत की तरफ जाते हुए आग के गोले को देखा और फिर अब्दुल वदूद को, और उसकी आंखों में तशक्कर था और पलके झुकाकर उसका शुक्रिया अदा किया। यकबीक उसकी आंखों में शोले भड़क उठे और उसने छत से मलक प्रताप पर नजर डाली। होंठ सिकोड़ कर अजनबी आवाज में कुछ कहा और प्रताप तोप से निकले गोले की तरह सर के बल जमीन से टकराया और उसका सर पाश पाश हो गया। हालांकि फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था, लेकिन प्रताप को उस कुव्वत से पटका गया था कि उसका सर एक धमाके से फट गया। राधा की आंखों से फिर सुर्ख शुआ निकली और प्रताप के जिस्म ने आग पकड़ ली और 2-3 मिनट में वहां राख के सिवा कुछ ना था। सुभान अल्लाह और बेख्तर अब्दुल वदूद के मुंह से निकला और राधा ने एक नजर अब्दुल वदूद को देखा और फिर उसकी तारीफ पर शर्मा कर नजरें झुका ली। बेबाक राधा आज एक घरेलू लड़की की तरह शर्मा रही थी और दीवार से टकराने से यकीनन राधा को तकलीफ हुई होगी, लेकिन उसने जाहिर ना होने दिया। और प्रताप के जहन्नम वासल होने के बाद मैं तेजी से सैमा की तरफ बढ़ा। रुक जाओ प्रेम, राधा की आवाज आई और मैंने हैरत से देखा। अभी तुम्हारा इसे छूना ठीक ना है और कालिदास ने जरूर कोई प्रबंध कर रखा होगा। और कबील एक पल रुक जाओ, उसने मुझे समझाया और मैं बादल नाक वास्ता रुक गया। मोहम्मद शरीफ नजरें झुकाए किसी बुत की मानद खड़ा था और पहली नजर के बाद उसने राधा की तरफ ना देखा था। हालांकि राधा का हुस्न किसी को भी उसकी तरफ मतवज्जा करने के लिए काफी था, लेकिन मोहम्मद शरीफ अजीब दरवेश इंसान था और उस उम्र में ऐसा तकवा कि मैं हैरान रह गया। और अचानक बाहर का दरवाजा एक धमाके से बंद हो गया। हा 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 हा, और कमरे में कालिदास का बेहानक कहका गूंज उठा। राधा ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और उसके चेहरे पर फिक्र तरद्दुद के आसार उभर आए और अब्दुल वदूद भी चौकन्ना दिखाई देने लगा। और इस मनुष्य को अपनी पत्नी की और जाने से क्यों रोक दिया तूने, और देख कितना बेअक्ल हो रहा है। और कालिदास की मज़का खेद आवाज आई। अचानक अब्दुल वदूद नजरों से उजल हो गया और राधा ने चौंक कर देखा और फिर आंखें बंद करके कुछ पढ़ने में मसरूफ हो गई। कमरे में एक बार फिर अंधेरा छा गया और मुझे साइमा की फिक्र थी। किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और करीब था कि मैं झटके से अपना हाथ छुड़ाता। मोहम्मद शरीफ की आवाज आई, फिक्र न करें खान भाई, जिक्र करें, और जिक्र करने से अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल होगी और इंशाअल्लाह। और मैंने एक बार फिर आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और आंखें फाड़ फाड़ कर साइमा को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता और मेरा हाथ अभी तक मोहम्मद शरीफ की गिरफ्त में था और पता नहीं राधा भी कमरे में थी या चली गई थी। मुझे डर था कि अगर वो इन बदबख्तों से शिकस्त खा गई तो साइमा का क्या बनेगा। कायर, और ये क्या बालकों जैसा खेल खेल रहा है, सामने आ तू जानू तो कितना शक्तिमान है। और राधा की आवाज कमरे में गूंजी। राधा के बोलते ही कमरा रोशन हो गया और वह अपनी जगह खड़ी चारों तरफ देख रही थी। और वह समय दूर नहीं कि जब तू मेरे चरणों में होगी। और कालिदास की आवाज आई, ऐसी आशाएं मन में रखे जाने, कितने पिंडर पुजारी परलोक से दार गए और तू क्या आशा है। और राधा ने दबंग लहजे में कहा, और यदि तू इतनी शक्तिमान है तो फिर इन मिनशों को लेकर यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। और कालिदास ने एक बार फिर उसका मज़ाक उड़ाया, तेरा बलिदान किए बिना ही चली जाऊं। और राधा ने कहा, अरे मैं तो कब से ऐसे अवसर की ताक में थी कि तू खुद मेरे चरणों में आए, और परंतु तू हिजड़ा बना मुझसे छुपा फिर रहा था और एक नारी से डरा डरा फिर रहा था, और तू है तेरी कायरता पर। और राधा ने हकारत से नीचे थूक दिया, जो माने में आए कह डाल, और तेरा अंतिम संस्कार मैं अपने हाथों से करूंगा और इस मलीच संग तेरा बलिदान भी काली के चरणों में होगा। और कालिदास भड़क गया, राधा तेरी काली माता से अपना संबंध तोड़ बैठी है, और केवल काली माता क्या, कोई देवी देवता राधा को श्राप ना दे पाएगी। और मैं राधा की बात सुनकर बुरी तरह चौंक गया। वो क्या कह रही थी, और हमेशा अपनी देवी देवताओं के गुण गाने वाली का ये कहना मुझे हैरान कर गया। और अगर मैं भी उनके बारे में कुछ कहता तो वह बुरा मान जाती, लेकिन मोहब्बत के हाथों मजबूर थी। लेकिन उसके चेहरे पर हर बार गुस्सा छा जाता, और जबकि आज वो खुद अपने देवताओं के बारे में ऐसी बात कह रही थी और हैरत से मेरी अक्ल गुम थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कमरे में अब्दुल वदूद का फलक शगाफ की नहरा गूंजा और कमरे में मौजूद था और फ़कत नज़रों से उजल हुआ था। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया और कमरे में नूर बरसने लगा।
मैं समझ रहा था कि वो चला गया है और मैंने देखा कि राधा के चेहरे से उलझन का इजहार हो रहा था और अब्दुल वदूद का चेहरा जोश से तमतमा रहा था। मोहम्मद शरीफ के होंठों पर खुशी से भरपूर मुस्कुराहट चिपकी हुई थी और मैं हैरत से सब कुछ देख रहा था और रोशनी के नूरानी हाले ने कमरे को मुनव्वर कर दिया। कमरा पहले भी रोशन था, लेकिन उस रोशनी में और मुकद्दस रोशनी में बड़ा फर्क था। तू बुद्धि खो बैठी है मूर्ख, और देवी देवताओं का अपमान करके तूने अपने धर्म को नष्ट कर दिया है और अब तेरा बलिदान करना मेरा अधार्मिक है। और कालिदास हलक के भर धाड़ा, कलंकनी और उस मलीच मुसले के प्रेम में तो अपनी बुद्धि खो बैठी है और तुझे ये भी ध्यान ना रहा कि तू क्या अनाप शनाप बके जा रही है। और अब तुझे देवताओं के शराब से कोई न बचा पाएगा। और इन मलीच मुसलों से कह कि अपने धर्म के किसी महाशक्तिमान को बुलाए जो तेरी रक्षा का कार बंद करे। और काली माता तुझे ऐसा शराब देगी कि तू मृत्यु मांगेगी, परंतु वो भी तुझे ना मिलेगी। पापन और गैजो गजब में गरजता कालिदास हमें भी रगड़ गया। मैंने देखा कि अब्दुल वदूद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, लेकिन जब वो बोला तो उसकी आवाज में ठहराव था। कालिदास, मजहब कोई भी हो, उसके पैरोकारों को यह जेब नहीं देता कि वह दूसरे मजहब या उसके मानने वालों को शान की शान में गुस्ताखी करें। तुमने एक तवील अरसा अपने मजहब की इबादत और रियादत में गुजारा है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि तुम्हें अक्ल ना आई। इल्म तो इंसानियत की फरासत को बढ़ाता है, लेकिन तुमने इस किस्म की बातें करके ये साबित किया है कि तुम्हारा इल्म अधूरा और नाकस है, और शायद तुमने अपने मजहब की तालीमात का सही तौर पर मुताला नहीं किया। कोई भी मजहब इंसान को बदकारी और जुल्म सितम नहीं सिखाता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुमने एक मामूली जिनजादे से एक नहायत कबीर फेल करवाया और तुमने एक नाम महरम बेकसूर को बिला वजह परेशान किया। हमारे मजहब में इसकी बाकायदा सज़ा मुकर्रर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ देर हमसे निशस्त इख्तियार करो ताकि हम बैठकर शरीफाना अंदाज से गुफ्तगू कर सकें। और मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस मोहतरम खातून को अपने जादू से आज़ाद करके आज़मत का सबूत दो। मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ और यही एक सच्चा मजहब है, और एक अल्लाह की इबादत करो और किसी को उसका शरीक ना ठहराओ। उसके भेजे हुए पैगम्बरों और क़यामत पर ईमान ले आओ ताकि शैतान के धोखे से बचकर सिराते मुस्तकीम पर चल सको, जो सीधा और सच्चा रास्ता है। और भलाई का ये रास्ता जिन्नों उनस इनस को हमेशा के लिए जन्नत में ले जाएगा। वरना तो इस जब्बार और कहार अल्लाह ने बड़ा ही दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है, और जिसमें उन सरकशों को डाला जाएगा जो उसकी नाफरमानी करते हैं। अब्दुल वदूद के गंभीर आवाज़ बराह रास्त दिल पर असर कर रही थी। और मैं तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, लेकिन मैंने देखा कि राधा की हसीन आंखों से आंसू जारी थे और वह बड़े बड़े जज़ब के आलम में आंखें बंद किए अब्दुल वदूद के ज़रिए अल्लाह का पैगाम सुन रही थी। नदामत और शर्मिंदगी ने उसके चेहरे को वो तकद्दुस बख्शा और जिसका इज़हार अल्फाज में मुमकिन नहीं। और तेरा उपदेश ख़त्म हो गया हो या अभी बाकी है। और कालिदास का लहजा तंजिया था। मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है जो मेरे ज़िम्मे फ़र्ज था। और अब्दुल वदूद ने तहम्मुल से जवाब दिया, और मैं पूछ रहा हूँ कि तेरा भाषण ख़त्म हो गया या अभी बाकी है। और कालिदास की बेजार सी आवाज़ आई, तू नहीं जानता कि तू इस समय किस शक्ति के संग बात कर रहा है, और यदि तू जान ले कि तू अभी मेरे चरणों में सर रखकर दिया कि बख्शा मांगेगा। और मुतकब्बर बड़ी हकारत से बोला, रही बात इस उल्टा की तो मैं इसी समय इसे नरक में पहुंचा सकता हूं, और परंतु मैंने काली महात्मा को वचन दिया है कि इसका और उसके प्रेमी का बलिदान उसके चरणों में अवश्य होगा। और कालिदास ने अपनी बकवास जारी रखी। थोड़ा समय और जाता है कि तुम सब जान जाओगे कि कालिदास से युद्ध करना बालकों का खेल नहीं। मेरे चेले प्रताप ने तुझे एक और अवसर दिया था कि तू इसका मित्र बन जा, परंतु जान पड़ता है कि तेरे सर में बुद्धि नहीं भूसा भरा हुआ है, और इस मलींच के कारण तुमने कालिदास के आश्रम में पिघ धरा है, और ये तेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। जानता हूँ कि कुछ शक्तियाँ तेरी सहायता कर रही हैं, परंतु महाराज विष्णु ने इसने मुझे वचन दिया है, और इसका जा पूरा होते ही मैं तुम सब का बलिदान काली माता के चरणों में करूँगा, और उस समय तक तुम उसी कोठे में बंदी बने पड़े रहोगे। और मैं वचन देता हूँ कि इसे तुम्हारे वास्ते नरक बना दूंगा। और उसके साथ ही आवाज़ आना बंद हो गई। सब खामोश थे और मैं इस इंतज़ार में था कि राधा या अब्दुल वदूद क्या करते हैं। और साइमा बदस्तूर बेहोश थी। सिर्फ उसके सीने के ज़ेरो बम से महसूस हो रहा था कि वो जिंदा है।
اور مجھے بچوں کی فکر ستائی جا رہی تھی اور نامعلوم کتنا وقت گزرا تھا، کیونکہ اس کمرے سے باہر بھی تاریکی تھی اور نہ ہی میرے پاس گھڑی تھی کہ میں وقت کے بارے میں معلوم کر سکتا، اور اس جادو نگری میں کتنا وقت گزرا احساس ہی نہ تھا، اور جی میں آئی کہ محمد شریف سے پوچھوں، لیکن سب کو خاموش پا کر میں بھی چپ کا کھڑا رہا۔ فاروق اور رادہ نے مجھے پہلی بار میرے اصلی نام سے پکارا اور میں بری طرح چونک گیا، اور وہ گہری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، اور عبدالودود اور محمد شریف بھی چونک گئے۔ سب کو متوجہ پا کر وہ کہنے لگی، میں تمہارا دھرم سویکار کرنا چاہتی ہوں، اور حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور مجھے لگا کہ جیسے میری سماعت نے دھوکہ دیا ہو۔ کیا کہہ رہی ہو رادہ؟ اور میں بری طرح بکھلا گیا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں وہ دھرم اپناؤں جو اس سنار سے جانے کے بعد میری سہایتا کرے؟ اور اس نے نظریں جھکا کر کہا، سبحان اللہ۔ اور محمد شریف نے کہا، اللہ اکبر۔ اور عبدالودود نے نعرہ بلند کیا، اور دونوں کے چہرے جوش سے چمکنے لگے، اور مجھے ابھی اور اسی سمے اپنے دھرم میں لے آؤ۔ اور اس نے دوبارہ کہا، رادہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن یہ سب کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ تم نے اچھی طرح سوچ لیا ہے نا؟ اور مجھے ابھی تک یقین نہ آ رہا تھا کہ رادہ نے وہی کچھ کہا ہے جو میری کانوں نے سنا تھا۔ کیوں نہیں بہن، اور یہ تو ہماری خوش بختی ہے کہ ہماری یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اور محمد شریف نے مسکرا کر کہا، اور اس کے چہرے سے خوشیوں کا آبشار بہنے لگا، اور عبدالودود کی آنکھوں کی بھی چمک بڑھ گئی۔ یہ ایک عجیب سا منظر تھا، اور شیطان کی ماج گاہ میں نور حق کی شمع روشن ہونے جا رہی تھی۔ اگر آپ چاہتی ہیں تو ہمیشہ کے لیے نجات پا جائیں تو اس نیک کام میں دیر کیسی؟ لیکن، اور اس بار عبدالودود نے رادہ کو مخاطب کیا، پرنتو کیا تم رک کیوں گئے؟ اور رادہ پہلی بار براہ راست عبدالودود سے مخاطب ہوئی۔ اسلام لانے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہاں آنے سے پہلے آشنان کر کے آئی تھی۔ اور رادہ نے سر جھکا کر کہا، بھائی محمد شریف، آپ انہیں کلمہ پڑھا کر یہ سعادت حاصل کریں۔ اور عبدالودود نے محمد شریف سے کہا، یہ حق بھائی فاروق خان کا ہے، کیونکہ انہی کی کوششوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بہن کو قبول کیا ہے۔ اور محمد شریف نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، میں اس قابل کہاں؟ اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی عبدالودود، اور یہ کام آپ ہی کو کرنا ہوگا، اور یوں بھی آپ ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ بھائیوں کی یہی خواہش ہے کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہو، تو میں سب سے پہلے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس سے قبضے میں سب مخلوق کی جان ہے، اور پھر آپ لوگوں کا شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ بڑے وقار سے آگے بڑھا، اور اپنا صافہ جو اس کے کاندھے پر تھا آگے بڑھاتا ہوا بولا، اسے تھام لیجئے، اور جو کچھ میں پڑھوں گا اسے دہراتی جائیے۔ اس نے نظریں جھکا کر رادہ سے کہا، اور اس کے بعد وہ مقدس فریضہ ادا کیا جانے لگا، اور جس کے لیے جنوں انس کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ کلمہ پڑھا کر ہم سب نے دعا کی، اور مجھے اب تک جتنی کوفت ہوئی تھی سب دھل گئی۔ محمد شریف کے والد صاحب کے الفاظ یاد آ گئے، جنہوں نے اشارتاً مجھے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز سے کوئی نیک کام لینا ہے۔ اور اس کے بعد محمد شریفی کے ذریعے حضرت ابو الہان صاحب نے مجھے بھی مبارکباد دی، اور رادہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور معلوم نہیں ندامت کے تھے یا خوشی کے۔ بھائی فاروق، آپ نے انہیں اسلام کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اور محمد شریف نے مجھے مخاطب کیا، محمد شریف، میں تو خود ابھی طفل مکتب ہوں، اور یہ فریضہ تو آپ ہی کو سر انجام دینا ہوگا۔ اور رادہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ محمد شریف اسے چیدہ چیدہ باتیں سمجھانے لگے۔ اللہ ایک ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی تمام جہانوں کا مالک، خالق اور رزاق ہے، اور اسی کے قبضے میں سب مخلوق کی جان۔ وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور اس نے ہر ایک کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہم سب کو لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ محمد شریف اپنی خوبصورت آواز میں اسلامی تعلیمات کا درس دے رہا تھا، اور رادہ سر جھکائے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے سن رہی تھی۔ اللہ پاک بڑا رحیم ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک ہندو جن زادی جو ہر دم دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ میں لگی رہتی، اب مشرب اسلام ہو گئی تھی، اور مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی۔ یہ تھی ابتدائی تعلیمات، اور باقی میں حضرت صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو باقاعدہ اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ اور محمد شریف نے کہا، فاروق، اور میں نے تمہیں بہت کشٹ دیا ہے، اور پرنتو میں غلط راہ پر چل رہی تھی، اور مجھ سے جو بھی ہوا انجانے میں ہوا، اور تمہاری سندر پتنی بھی میری کارن کشٹ بھوگ رہی ہے، اور مجھے क्षमा کر دو۔ اور رادہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
अल्लाह के पसंदीदा दीन का एजाज़ है कि उस पर चलने वाला खुद की नफ़ी करके अल्लाह की खुशनुदी की खातर हरदम मुआफ़ी और मगफ़रत का तलबगार रहता है। राधा, वक्त गुमराही में तुमसे जो कुछ भी हो उसमें मेरा और तुम्हारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि जिन्नो इंस शैतान के बहकावे में आकर गुनाह करते हैं और तुम्हें अल्लाह ताला ने अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर लिया है और तुम बहुत खुश नसीब हो और मैं आबदीदा हो गया। अचानक कमरा एक बार फिर तारीकी में डूब गया, लेकिन 1 मिनट के बाद दोबारा रोशन हो गया और सामने नजर पड़ी तो मैं शशदर रह गया। दीवार के पास एक कतार में 7 आदमी लंगोटियां पहने खड़े थे और सबसे आगे एक हट्टा कट्टा तवील कामत शख्स था और उसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे और सर अंडे के छिलके की तरह साफ और दरमियान में मोटी सी चोटी लटक रही थी। उसने जिस्म पर जर्द का कोई सफूफ मल रखा था और कद उसका तकरीबन 6.5 फुट होगा। गले में कई मोटे दानाओं की माला लटक रही थी और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और सुर्ख अंगारे जैसी थीं। माथे पर 3 मुख्तलिफ रंगों की लकीरें खिंची हुई थी और उसके पीछे कतार में कंधे से कंधा मिलाए दूसरे पुजारी खड़े थे और सब के हीले एक जैसे थे। सिर्फ कालीदास की बड़े बड़े झाड़ झंकार सफ़ेद बाल और बेहंगम दाढ़ी मुछे थी और बाकी सब गंजे और दरमियान में मोटी मोटी चोटियां लटक रही थीं और जिन्हें उन्होंने अपने सीनों पर डाल रखा था। और सबसे आगे वाले पुजारी के चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी और वह बुतों की मानद साकत खड़े थे, हत्ता के पलक भी नहीं झुक रहे थे। और सबसे आगे खड़ा पुजारी यकटिक राधा को घूर रहा था। महाराज, यही वो पापन कालिदास ने राधा की तरफ उंगली से इशारा किया। मुझे क्या बताता है मूर्ख, सब जानता हूँ। और उसकी आवाज़ खासी गर्जदार थी।